گھر میں 5 مقامات، 5 جگہ ایسی ہیں جہاں شیطان رہتے ہیں اور لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ لوگ احتیاط نہیں کرتے اور ان شیطانوں کی وجہ سے انسانوں کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ شیاطین انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، کسی کو بیماری کی شکل میں، کسی کو مال کے نقصان کی شکل میں، کسی کی اولاد تباہی و بربادی کی طرف جاتے ہیں، اور کسی کے گھر والے ستاتے ہیں، اور گھروں کے اندر مختلف قسم کے حالات اور مصیبت اور پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری کی ساری وجہ ہے گھروں میں ان 5 مقامات پر شیاطین رہتے ہیں جہاں پر انسان احتیاط نہیں کرتا، اور یہ باتیں ہر مسلمان کو معلوم کرنا ضروری ہے اور دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ وہ 5 جگہیں جن پر شیاطین ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہے غیر استعمال شدہ بستر، یعنی وہ بستر جس کو یوز نہیں کرتے، اس پر بھی شیطان رہتے ہیں اور وہیں پر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ گھروں میں بستریں پڑے رہتی ہیں جس کو لوگ یوز نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے بستر بچھایا ہوا رہتا ہے پلنگ پر، کہیں نیچے، کبھی بیڈ پر بستر یوں ہی بچھا ہوا رہتا ہے، لیکن بچھایا ہوا بستر، اس پر بھی شیطان رہتا ہے اور اس بستر کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراش للرجل وفراش لأہلہ والثالث للضیف والرابع للشیطان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں بستر ہوتے ہیں، ایک بستر مرد کے لیے، دوسرا بستر اس کی بیوی کے لیے، تیسرا بستر مہمان کے لیے، اور چوتھا جو بستر ہوتا ہے وہ شیطان کے لیے ہوتا ہے۔ لہذا بستر کو ہمیشہ لپیٹ کر رکھیں۔ پہلے زمانے میں ایسی پلنگیں ہوا کرتی تھی، سونے کے بعد بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور پلنگ کو اٹھا دیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں ایسے بیڈز آ گئے ہیں جو ہمیشہ بچھے ہوئے رہتے ہیں، جس کو بار بار اٹھا کے رکھنا مشکل اور ممکن نہیں ہے، اور صبح سے شام تک ہمیشہ وہ بیڈ پر بستر بچھے ہوئے رہتے ہیں، چاہے اس میں انسان ہو یا نہ ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہمیشہ ان بیڈوں پر بستر بچھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو اس بارے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، ایسے بیڈ پر بستر کو لپیٹ کے رکھنا چاہیے، اور ہر 2-3 دن بعد اس بستر پر قرآن کا پڑھا ہوا پانی یا خوشبو چھڑک دینی چاہیے، کیونکہ جہاں پر قرآنی آیتیں پڑھ کر دم کی جاتی ہے اور وہ پانی جہاں چھنک دیا جاتا ہے وہاں پر شیطان نہیں ہوتا، اور جہاں پر خوشبو چھنک دی جاتی ہے وہاں پر بھی شیطان نہیں ہوتا۔ لہذا کہ وہ گھر جہاں پر بستر اٹھانا ممکن ہو تو ایسے وقت میں بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا بیڈ، کوئی ایسا بستر ہے کہ جہاں پر ہمیشہ بچھا کے رکھنا ہی پڑے گا، تو ایسے وقت میں ہر 2-3 دن بعد قرآنی آیتیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے بستر پر چھنک دیں اور خوشبو چھنک دیں، تو اس بستر پر شیطان نہیں آ سکتا۔ اور بعض بستریں گھر میں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، بس یوں ہی پڑے رہتی ہے، ان پر بھی شیطان آ کر سوار ہو جاتا ہے، اس کو شیطان اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ تو ایسے بستروں کو اٹھا کر دھوپ میں رکھ دیا کریں۔ جب بھی وقت ملا یوز نہیں ہونے والے بیڈ شیٹس اور بستروں کو ہفتے میں 1-2 مرتبہ اس کو دھوپ میں رکھ دیا کریں، اٹھاتے رہیں، اس کو سکھاتے رہیں۔ اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر اس کو شیطان اپنا ٹھکانہ نہیں بنا سکتا۔ گھر میں دوسری جگہ اور دوسرا مقام وہ ہے جہاں پر شیطان رہتا ہے، وہ ہے غسل خانہ اور باتھ روم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الحشوش محتضرہ فاذا اتاها احدکم فلیقل اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل خانے شیطانوں کے آنے جانے کی جگہ ہے، وہاں پر رہنے کی جگہ ہے، لہذا جب کوئی وہاں جائے تو کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لیں گے تو پھر
उस बाथरूम में, उस वॉशरूम में अगर कोई शैतान, कोई जिन वगैरह रहे तो भी आपको नुकसान नहीं दे सकता। उसके और आपके बीच में पर्दा पड़ जाएगा, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा ये दुआ हर मर्द, हर औरत सीख लेनी चाहिए और अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बगैर दुआओं के एहतमाम के लोग वॉशरूम में, बैतुल खला जाते हैं, वहां पर जिन्नात और शयातीन होते हैं, उसके असरात उन लोगों पर होते हैं, तो वो मुश्किलों के शिकार हो जाते हैं और परेशान होकर यहां वहां आमिलों के पास फिरते हैं। और वो झूठे आमिल भी कहते हैं तुम्हें तुम्हारा करीबी रिश्तेदार जो तुमसे झगड़ता था, लड़ता था, वो तुम पर करा दिया। ये सब बकवास है। ये तो तुम्हारे वॉशरूमों में रहने वाले जिन और शयातीन का असर है कि जिससे तुमने एहतियात नहीं किया। ये तुम्हारी गलती है, दूसरों पर ये गलती नहीं डालनी चाहिए। वॉशरूम और बाथरूम वगैरह में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ लें और अंदर रहकर बात ना करें, गाना ना सुने, बाथरूम में, वॉशरूम में ज्यादा वक्त ना गुजारें। और इसी तरीके से बाथरूम और वॉशरूम का हमेशा उसका डोर लॉक रखें, उसको, दरवाजे को बंद करें, खुला ना रखें। और यहां पर भी शैतान रहते हैं। दुआ पढ़ लेंगे आप, हमेशा दरवाजा बंद रखेंगे तो फिर उसकी शर से आप महफूज रहेंगे। आपको कोई जिन और शैतान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। घर में तीसरी वो जगह जहां पर शैतान अपना ठिकाना बनाता है, लंबे अरसे से लटके हुए कपड़े। कई दिनों से घर में कपड़े लटकाए हुए रखते हैं, कईयों हफ्ते, महीने गुजर जाते हैं और कपड़े लटके हुए रहते हैं। घरों में लटके हुए कपड़ों पर भी शैतान हावी हो जाता है। उन कपड़ों को अपना ठिकाना शैतान बना लेता है, उससे भी इंसानों को नुकसान पहुंचता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, अपने कपड़े तह करके रखो क्योंकि शैतान हर लटके हुए कपड़े में ठिकाना बनाता है। एक सहाबी रसूल हैं, वो फरमा रहे हैं कि हमेशा कपड़ों को तह करके रख दो, उसको जमा दो, ऐसे ही टंगा के लटका के मत रखो क्योंकि शैतान उसको अपना ठिकाना बना लेता है, रहने की जगह बना लेता है। और जिस घर में शैतान होता है तो फिर वो घर वाले हमेशा मुसीबतों में, तकलीफों में, परेशानियों में पड़े हुए रहते हैं। कपड़ों को सही तरीके से तह करके रखें और 10 दिन, 15 दिन में एक मर्तबा अलमारी खोलकर सूरतुल फातिहा, आयतल कुर्सी पढ़कर दम करें, कपड़ों पर दम करें। और वो कपड़ों पर दम किया हुआ पानी और खुशबू छिनके तो फिर वो कपड़ों पर भी शैतान नहीं रह सकता, नहीं टिक सकता। घर के अंदर चौथे नंबर पे शैतान रहने की वो जगह जहां पर घरों में इंसान के फोटो या हैवानों के फोटो, शक्लें, मुजस्समे बना के रखते हैं। इंसानी या हैवानी शक्ल के मुजस्समे और तस्वीर पर भी शैतान हावी हो जाता है और उसको अपना ठिकाना बना लेता है। घरों में जो इंसानों के फोटोज होते हैं, इंतकाल हुए सो बाप है, दादा है, नाना है, नानी है, अम्मी है, अब्बा है, लोग इंतकाल हुए तो उनकी फोटो बड़ा फ्रेम में बनाकर रख लेते हैं और यही फोटो पर शैतान अपना ठिकाना बना लेता है। लोग गाफिल हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। इसी तरीके से बादे घरों के अंदर जानवरों के फोटो और उनकी शक्लें बनाकर फ्रेम वगैरह में रख लेते हैं। इसको भी शैतान अपना ठिकाना बना लेता है और वहां रहकर सारे घर वालों को परेशान करता है और मुसलमानों को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। अपने घरों में शैतान के ठिकाने बना के रखे हैं। जब भी कोई तकलीफ आई तो फिर आमिलों के पास जाते हैं और वो आमिल उनके रिश्तेदारों के बारे में कहता है तो अब वो दूसरों से उनके बारे में बुरा भला कहते फिरते हैं, जबकि ये अपने घरों में किए हुए करतूत की सजा है। इंसानों की तस्वीर या जानवरों की तस्वीर जो घरों में रखते हैं उस पर भी शैतान हावी होता है, उसको भी अपना ठिकाना बना लेता है। लिहाजा फौरन उस तस्वीरों को निकाल देनी चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलुल मलाइकतु बैतन फीहि कल्बुन वला तमासील। सही मुस्लिम की हदीस है। फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता या मुजस्समे हो या फोटो हो,
जिस घर में कुत्ता होता है या फोटो होते हैं, उस घर में अल्लाह ताला के रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। जहां पर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते, वहां पर शैतान आबाद हो जाते हैं। इंसानी या हैवानी शक्ल के मुजस्समे और तस्वीर अपने घरों में ना रखें। अगर घरों में है तो उसे ढांप दें, उसे असल निकाल दें, उसे खत्म कर दें, और तस्वीर वगैरह है उनके फेस और जिस्म को कोई प्रिंट वगैरह करके उसको खत्म कर दें। घर में शैतान रहने की पांचवी जगह आग जलाने की जगह है, यानी चूल्हा। पहले जमाने में लकड़ी के चूल्हे हुआ करते थे, और इस जमाने में गैस का चूल्हा, करंट का चूल्हा वगैरह होता है। और ये चूल्हों पर भी शैतान बैठा रहता है, शैतान सवार होके रहता है, शैतान उसको अपना ठिकाना बना लेता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वखलकल जान्ना मिन मारिजिम मिन नार। अल्लाह ने जिन्नात को आग से पैदा किया। ये चूल्हों पर भी शैतान कब्जा कर लेता है और उस पर शैतान हावी रहता है, शैतान उसको अपने रहने की जगह बना लेता है। जब भी चूल्हा जलाए या बुझाए, चूल्हा जलाते वक्त या बुझाते वक्त बिस्मिल्लाह कहें। जब भी आप चूल्हा सुलगाते हैं तब बिस्मिल्लाह कहें, जब चूल्हा बुझाएं तो बिस्मिल्लाह कहें। ये बिस्मिल्लाह कहने की बरकत से अब वो चूल्हे पर शैतान नहीं बैठ सकता, वहां रहकर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और चूल्हे की जगह को साफ सुथरा रखें। अगर चूल्हे की जगह गंदा होता है, पूरी गंदगी से भरा हुआ रहता है, किचन रूम मुकम्मल गंदा पड़ा सड़ा रहता है, तो फिर इस किचन रूम में शैतान और जिन्नात का कब्जा हो जाता है। हमेशा चूल्हे को पाक और साफ रखें, और उस पर भी दम किया हुआ पानी छिड़क दिया करें। इन 5 मकामात पर, इन 5 जगहों पर शैतान होता है, उसको अपना ठिकाना बना लेता है। आप ये एहतियात करेंगे तो फिर वो शैतान से आपको नुकसान नहीं होगा और आपके घरों में शैतान नहीं रह सकता। इसी तरीके से अपने घरों से शैतानों जिन्नातों को निकालने के लिए घर में कुरान करीम की तिलावत का मामूल बना ले। खास तौर पर घर में सूरतुल बकरा की तिलावत करें। पढ़ना अगर नहीं आया तो उस सूरे को सुने, क्योंकि हदीस में है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरे बकरा की तिलावत की जाती है। जिस घर में सूरे बकरा पढ़ा जाता है उस घर से शैतान भाग जाता है। लिहाजा आप अपने घरों से जिन्नात और शयातीन को भगाना चाहते हैं, सूरे बकरा की तिलावत करें और अपने घरों में कुरान पाक की तिलावत का मामूल बनाएं। घर में अजान वक्तन फवक्तन दिया करें। अजान के जो कलिमात होते हैं, मर्द हो या औरत हो, जो भी हो, अजान के कलिमात पढ़ते रहें, अजान के कलिमात को दोहराते रहें, क्योंकि अजान की आवाज से भी शैतान भाग जाता है। कभी बाज़े घरों में अजीब आवाजें आती है, डरावनी आवाजें आती है, या डर की कैफियत महसूस होती है, तो ऐसे वक्त में घर में अजान दे दे, अजान के कलिमात पढ़ें। अजान के कलिमात की वजह से भी शैतान जो है घर से भाग जाता है। इसी तरीके से रात को बर्तन ढांपना, आप घर में पानी या खाने की चीजें जो भी होती हैं तो उस पर बर्तन आप ढांप दिया करें, कोई चीज खुला ना रखें और दरवाजा बंद कर दे। हदीस में है कि रात को दरवाजे बंद करो और बर्तन ढांप दो ताकि शैतान दाखिल ना हो। रात में दरवाजे खुले रहे तो शैतान दाखिल हो जाता है। अगर आपके बर्तनों, आपके बगोने, खाने पीने की चीजें खुली रही तो फिर उसके अंदर शैतान दाखिल हो जाता है। इसी तरीके से बेपर्दगी और नापाकी से बचते रहें। गुस्ल की जरूरत पड़ी, नापाक हो गए तो फौरन पाक होने की फिक्र करना, फौरन पाक हो जाना है। मर्द हजरात है, गुस्ल की जरूरत पड़ी, पाक होने में ताखीर ना करें, लेट ना करें। अगर लेट करेंगे तो फिर जिस घर में नापाक इंसान होता है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आ सकते, और नापाक इंसानों के पास शैतान को रहना बहुत पसंद है। बहुत सारे मर्दों को कभी जिन्नात और शैतान का असर हो जाता है। क्यों? ये लोग तहरत से नहीं रहते, ये लोग हमेशा नापाक रहते हैं। गुस्ल की जरूरत पड़ी लेकिन कईयों घंटे ये लोग गुस्ल ही नहीं करते।
یہ جسم شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے اور یہاں سے سارے گھروں کے اندر وہ مصیبتیں اور پریشانیاں شیطان ڈال دیتا ہے، انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو لہذا مرد اگر ہے جب بھی نہانے کی ضرورت پڑے دیر نہ کرے، پہلے پاک و صاف ہو جائے پھر بعد میں وہ آرام کر لے۔ اسی طریقے سے عورتیں ہوتی ہیں، جب بھی وہ ناپاک ہو جائے، پاک ہونے کا ٹائم آئے تو اس میں دیری نہ کرے، فوراً اسی گھنٹے کے اندر وہ غسل کر لے، پاک و صاف ہو جائیں، کیونکہ عورتیں جب ناپاک ہوتی ہیں تو ان پر شیطان حاوی ہو جاتا ہے، شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور لوگ ناپاکی کے ایام میں باہر نکلتے ہیں تو پھر وہ جادو کے، جنات کے، شیطانی اثرات کے شکار وہ ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ناپاک ہو جائے تو فوراً پاک ہو جانا۔ ناپاکی کے دن چل رہے ہیں تو جب بھی آپ پاک ہو گئے ہیں تو فوراً جو ہے غسل کر لینا، غسل کرنے میں دیری اور تاخیر ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ تمہاری یہ تاخیر جنات اور شیطان تم پر حاوی ہونے کا سبب اور ذریعہ بنے گا، کیونکہ ناپاک جگہیں اور بے پردگی شیطان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، گویا شیطان کو ہم دعوت دینے والے بن جائیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر سے جنات اور شیطان کو نکالنے کے لیے یہ تدابیر ہیں، ان پر آپ عمل کریں گے تو پھر آپ محسوس کریں گے گھروں کے اندر چین رہے گا، سکون رہے گا، تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بے برکتی ختم ہو جائیں گی، اور گھروں کے اندر چین اور سکون انسان کو حاصل ہوگا، انسان کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیاطین کی شر سے حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے تو مفتی آدم احمد صاحب کے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔